اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالی محمد اشرف مرحوم کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہت اچھے انسان تھے، محبت کرنے والا، دوستوں کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول کرے۔ آمین۔ دوستو، اس سال ثواب کی محفل ہے اور اس کے جو مطلب ہے اس محفل کا یہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کسی نے درود پاک پڑھا، کسی نے کلمہ شریف پڑھا، کوئی کل شریف کسی نے پڑھا، یہاں پر حفاظ نے نعتیں پڑھی، میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں، پھر ختم شریف پڑھیں گے، لنگر شریف ہوگا، تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب محمد اشرف کو قبر میں نور کی صورت میں ضرور عطا فرمائے۔ اور دوستو، یہ ساری برکتیں جو ہیں یہ ایمان کی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اللہ نے ہمیں بنا کے ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نبی تو پہلے بھی آئے، رسول پہلے بھی آئے، امتیں پہلے بھی تھیں، لیکن جو رعایت اور جو کرم اس امت پہ ہوا، ہم سے پہلی امتوں پہ اتنا کرم اور فضل نہیں ہوتا تھا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت احکام کو نازل کیا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمارے لیے نرمی پیدا کر دی۔ یہ بھی نرمی ہے، یہ بھی ایک نرمی ہے کہ مسلمان کے مرنے کے بعد اگرچہ بشری تقاضے سے وہ گناہ لے کے قبر میں جاتا ہے، خطا کار ہو کے سیاکار ہو کے قبر میں جاتا ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے مرنے کے بعد مسلمان مومن جو دعائیں مانگتے ہیں، جو اس کے لیے خیرات و صدقات کرتے ہیں، جو اس کو مرنے کے بعد دعا کے تحفے بھیجتے ہیں، حضور نے فرمایا اس تحفے اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، میں آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کے نام کو، ہمارے نبی کے ذکر کو بلند کیسے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، شام کے اندر ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب ہفتے کا دن آتا تھا تو وہ تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ جیسے ہم سارا اگر ہفتہ نہ بھی فارغ ہوں تو پھر جمعہ کے دن بندے قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے، برکت زیادہ ہوگی۔ ہاں جی، تو اسی طرح اس کا معمول تھا کہ سارا ہفتہ چپ رہتا اور جب ہفتے کا دن آتا تو وہ تورات کو پڑھ کے، یہودی تھا چونکہ، وہ اس کی تلاوت کرتا، اس کو پڑھا کرتا تھا۔ جب ہفتے کا دن آیا نا تو ایک بار اس نے تورات کو کھولا تو تورات کے اندر اس نے دیکھا کہ 4 مقامات پہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور حضور کی تعریف موجود تھی۔ اب اس نے 4 جگہ پہ حضور کا ذکر پڑھا، حضور کی تعریف پڑھ رہا ہے، تو دل میں اور دماغ پہ شیطان نے اثر کیا۔ اس نے کہا تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے یہودیوں کو عطا کی ہے، حضرت موسیٰ پہ نازل کی، حضرت موسیٰ کو دی، لیکن یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ کتاب ہماری ہو اور ذکر آخری نبی کا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں آیا اور اس نے اس 4 جگہ سے وہاں سے ورقوں کو پھاڑا
जहाँ हुजूर का जिक्र था, फाड़ने के बाद उसने फेंक दिया। अब उसने किताब को बंद करके रख दिया। जब दूसरा हफ्ता आया फिर उसने तिलावत करनी चाहिए तो उसने देखा 4 जगह पे फाड़ा था, 8 जगह पे मेरे नबी का जिक्र मौजूद था। 8 जगह पे तौरात के अंदर हुजूर का जिक्र मौजूद था। जब उसने पढ़ा तो हैरान हो गया। उसने कहा ये किया, मैं तो तौरात के अंदर आखिरी नबी के जिक्र को 4 मकाम पे बर्दाश्त न कर सका और यहाँ तो 8 जगह पे है। उसे फिर गुस्सा आया। उसने गुस्से से वही 8 के 8 मकाम को फाड़ के किताब से जुदा किया। गुस्से में किताब को बंद करके रख दिया। हफ्ता गुजर गया उसी ख्याल में। जब तीसरा हफ्ता आया ना, फिर उसने तौरात को पढ़ने के लिए खोला तो अल्लाह की कुदरत देख के उसमें 4 नहीं 8 नहीं पूरे 12 मकाम पे नबी का जिक्र। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। और जिसको रब जिसके जिक्र को बुलंद करे, जिसके जिक्र को अल्लाह खुद बुलंद करना चाहे, एक यहूदी उसके जिक्र को कैसे बुलंद कर सकता है, रोक सकता है। अब उसने तो 8 जगह पे फाड़ा था, अल्लाह ने 12 जगह पे मेरे नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया। उसने 12 मकाम पे हुजूर के जिक्र को पढ़ा। उसने कहा अगर मैंने इस तरह किताब को फाड़ना शुरू कर दिया तौरात खत्म हो जाएगी, आखिरी नबी का जिक्र खत्म नहीं होगा। उसने किताब बंद की, बाहर आया, यार उसके थे दोस्त, उनको बुलाया। उसने कहा यार ये तो बताओ ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कौन? कि तौरात के अंदर मैंने 4 मकाम पे, फिर 8 पे, अब 12 मकाम पे नबी के औसाफ, नबी की सिफात मौजूद है, नबी की तारीफ मौजूद है। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह है कौन, कहाँ रहता है? जब उसने अपने यारों से पूछा ना, अल्लाह करे कि यार भी अच्छे हों, दुआ क्या करो यार भी अच्छे हों। अच्छे यार किसी किसी के नसीब में होते हैं। जब उसने दोस्तों से पूछा ना, उन्होंने कहा वो छोड़ तेरा क्या? उसने कहा नहीं मेरा तो सब कुछ है, मैं इसकी खोज लगाऊंगा। उन्होंने कहा वो नबूवत का दावेदार है, वो कहता है मैं आखिरी नबी हूँ और माज़अल्लाह वो नबी है नहीं, तू क्या करेगा? उसने कहा ये बताओ वो रहता कहाँ है? उन्होंने कहा वो यहाँ से मदीना मुनव्वरा में रहता है। उसने कहा कि अगर तुम कहते हो कि वो नबी मौजूद है और नबूवत का दावेदार है, अरे तुम कहते हो कि वो झूठा है, माज़अल्लाह वो सच्चा नबी नहीं है, लेकिन मैं तो तौरात खोलता हूँ तो सामने उसका जिक्र आ जाता है, उसका जिक्र आ जाता है। अगर वो सच्चा नहीं तो फिर रब उसकी तारीफ क्यों कर रहा है? मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ, रब बढ़ा रहा है, तो मैं उसकी ज़ियारत के लिए जाऊंगा। उसने घोड़ा निकाला और वहां से सीधा हुजूर के दीदार की तलब में मदीना शरीफ चला गया। जब मदीना शरीफ के करीब आया ना तो बाहर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने खजूरों में बाग की देखभाल कर रहे थे। जब उसकी निगाह, आप जरा गौर करो, जब उसकी निगाह हजरत सलमान फारसी के चेहरे पे पड़ी ना तो उसने कहा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। हजरत सलमान फारसी के चेहरे के नूर को देखा, सिहाबी रसूल थे, सिहाबी रसूल के चेहरे में उसने जमाल मुस्तफा का नजारा किया। उसे नहीं मालूम था कि ये नबी का गुलाम है, नबी तो बड़ा हसीनो जमील है। उसने कहा यही मोहम्मद है जो खजूरों को पानी लगा रहा है। जब उसने आपका नाम, हुजूर का नाम लेके हजरत सलमान फारसी को सलाम किया ना, हजरत सलमान की धाड़ निकल के फरमाया ओए आने वाले अजनबी, मैं मोहम्मद नहीं, मैं तो मोहम्मद का अदना गुलाम हूं। मेरे अंदर तो नबी के नूर का, नबी के जमाल का अक्स है, तूने मेरे नबी को देखा ही नहीं है। मेरा नबी तो वो है जो रब का भी प्यारा और महबूब है, वो तो बड़ा हसीन है। उसने कहा अच्छा तू अगर उसका गुलाम है तो फिर आका का क्या मकाम होगा, मुझे अपने नबी की बारगाह में लेके चल। हजरत सलमान फारसी ने कहा अब अगर मैं इसे कहता हूँ ना 3 दिन पहले हुजूर का विसाल हो गया था, कहते अगर मैं इसे कहता हूँ ना ये वापस चला जाएगा, अगर इसे कहता हूँ कि हुजूर हैं तो झूठ होगा, क्या करूं? हजरत सलमान फारसी ने कहा यार आ,
मैं तुझे हुजूर के मदीना में हुजूर के गुलामों सहाबा के पास ले चलता हूँ। वहाँ से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जब हज़रत सलमान फारसी उसको लेके आए ना, जब वो मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचा, ज़रा गौर करो, तवज्जो दोस्तों, तो मस्जिद नबी के अंदर सहाबा किराम मौजूद हैं। हर सहाबी के चेहरे से नूर झलक रहा था, सितारों की मानद मेरे नबी के सहाबा चमक रहे थे। जब वो मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचा, उसने हर एक के चेहरे से नूर निकलता हुआ देखा, तो उसने कहा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद। जब उसने हुजूर का नाम लेके सलाम किया ना, तो सहाबा में तो कोहराम मच गया, सहाबा तो दाने मार के रोने लग गए, चीखो पुकार हो गई। उन्होंने कहा तुझे मालूम नहीं है कि हमारे नबी का तो विशाल हो चुका है, 3 दिन हमारे नबी पहले इसके नाज से पर्दा कर गए हैं। उसने कहा मुझे क्या मालूम इनमें नबी कौन है, मैं तो इनके चेहरे को देख के हर एक को नबी समझ रहा था। क्यों? इसलिए कि उन सहाबा ने बराह रास्त मेरे नबी से नूर हासिल किया था। अब उन्होंने हुजूर के उस आने वाले मेहमान को बिठाया। उसने कहा अच्छा ये बताओ, अगर नबी का विशाल हो गया है तो में अली कौन है? अब जरा सुनो। उसने कहा अली है। उन्होंने कहा हाँ अली तो मौजूद हैं। उसने कहा अगर नबी कैनात से पर्दा कर गए हैं तो मुझे अली से मिला दो, क्योंकि जिस जगह मैंने नबी का जिक्र पढ़ा था उसी जगह पे अली का जिक्र भी मौजूद था। सुभान अल्लाह। जहां नबी का जिक्र था उसी जगह पे अली का जिक्र भी मौजूद था। उन्होंने हजरत अली मौला कायनात के सामने पेश किया। तो उसने अर्ज की ए अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे मुक़द्दर में नबी का दीदार तो नहीं था, शुक्र है कि मैंने तेरा दीदार कर लिया है। अब जरा करम करें कि मुझे किसी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी तबर्रुक की ज़ियारत करवा दें ताकि मेरा सीना जो है वो ठंडा हो जाए। अब हुजूर हजरत अली मौला कायनात ने उसे बिठा दिया। फरमाया सलमान जाओ, मेरे घर जाओ, सैयदा खातून जन्नत से कहो हुजूर का जुब्बा भेज दे। अब जरा गौर करो, आखिरी अलबात हजरत अली मौला कायनात हजरत सलमान फारसी को भेजते हैं। हजरत सलमान फारसी ने जब दरवाजा खटखटाया ना, और उसने कहा ए फख्रुल अंबिया, ए ज़ैने औलिया के घर वालों, हजरत अली हुजूर का जुब्बा मांग रहे हैं। जब उन्होंने दस्तक दी, तो जब उन्होंने आवाज सुनी ना, तो हजरत सलमान कहते हैं हुजूर के हिज्र में हसनैन करीमैन भी रो रहे थे। और बीबी पाक ने अंदर से जवाब दिया, ए यतीमों के दरवाजे खटखटाने वाले क्या चाहते हो? हजरत सलमान कहते हैं मैंने अर्ज की बीबी पाक, ए मखदूम-ए कायनात, ए जन्नती औरतों की सरदार, हजरत अली मौला कायनात हुजूर का जुब्बा मंगवा रहे हैं। हुजूर का जुब्बा पता है कैसा था? हजरत सलमान कहते हैं जब उन्होंने मुझे हुजूर का जुब्बा दिया ना, मैंने देखा तो 7 पैमद लगे हुए थे। कितना करम है, कितने हसीन कपड़े अल्लाह ने हमें दे दिए हैं। ये मेरे नबी की निस्बत से हो रहा है। भाई गौर करो, 7 पैमद लगे हुए थे। और उस जुब्बे को जब लेके गया तो हजरत अली ने अपने हाथों में लिया, हजरत अली ने अपनी आंखों से लगाया, फिर उसको सूंघा और उस यहूदी के हाथ में दिया। उसने हुजूर के जुब्बे को चूमा, आंखों से लगाया, सूंघ रहा था, और उस जुब्बे को लेके हुजूर की कब्र अनवर पे हाजिर हुआ। और उसने आके कहा ऐ अल्लाह मैं मानता हूँ, गवाही देता हूँ, तू वाहिद भी है, अहद भी है, फर्द भी है, वहदहू ला शरीक भी है। और मैं गवाही देता हूँ तेरा नबी भी सच्चा नबी है। और उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा मौला मैं शाम से चल के मदीना में तेरे महबूब के दीदार के लिए आया था। इस जाहिरी आंखों से तो नबी का दीदार नहीं कर सका। अगर तूने मेरे ईमान को कबूल कर लिया है ना, इतना करम कर मेरी रूह अभी अभी जिस्म से जुदा हो जाए। अब सहाबा देख रहे हैं, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया। हजरत अली की आंखों के सामने उसकी रूह जो थी वो परवाज कर गई। हजरत अली ने उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, अपने हाथों से जन्नतुल बकी में जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। दोस्तों ये क्या है? ये ईमान है। अगर दिल में सच्ची लगन हो, नबी की मोहब्बत हो, यकीन रखो, ईमान रखो। अगर दुनिया में ये गुनाहगार आंखें नबी को नहीं देख सकती, तो नबी की मोहब्बत के वसीले से कब्र में जरूर नबी का दीदार होगा। ये सब इज्जतें जितनी भी यहाँ पर हम जमा बैठे हैं, इज्जत व एहतराम के साथ
یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ میرے نبی کی نسبت سے ہوا ہے۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ مومن کا ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو، میرے ذکر کو قبول فرمائے، اور اس کے صدقے سے اللہ محمد اشرف کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ اس کے اہل و عیال کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے۔